Hello everyone, this is Vinay Kumar and I welcome you all guys to my YouTube channel Full Marks Competition Classes. Guys, in this class we will see the fundamental things of the percentage. After that we will solve the practice questions of this topic, and this class is really very helpful for those students who are preparing for bank PU examinations, CLAT examinations, bank clerical examinations, SSC examination and any other competitive examination. Okay guys, so let us start the class. Before starting this class, if you are new at my channel, then just subscribe my channel and hit the like button and just share this video among your friends. Let us begin this class everyone. So first of all, we will see what is percentage. So the basic fundamental of the thing is, what is percentage? Percentage basically hota kya hai? So the meaning of the percentage, out of 100 how many things you have. Suppose I am taking the example, in your exam you are getting 75 marks, and this is your obtained marks, and the total marks is equal to 150 marks. It means out of the 150 marks you are getting 75 marks. So what is your obtained percentage? So obtained percentage is equal to obtained marks divided by the total marks multiplied by 100. Okay, so you have obtained marks as 75 divided by the total marks as 150 multiplied by 100. So this will be cut for 2 times, and 100 divided by 2 is what? 50. It means you are getting 50 percentage. In terms of marks you are getting 75 marks out of 150, and in terms of percentage you are getting 50 marks out of 100%. इट मीन्स यू वांट टू से, आप ये कहना चाहते हैं कि जो टोटल परसेंटेज है, टोटल मार्क्स का जो परसेंटेज है वो तो 100% है, और आपका जो ऑब्टेन्ड परसेंटेज है वो 50% है। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं 150, वो टोटल परसेंटेज जो 100 है उसके इक्विवेलेंट है। यानी 100% जो है, क्योंकि 100% क्या है, 100% आपका टोटल मार्क्स का परसेंटेज है, और 150 मार्क्स क्या है, ये आपके टोटल मार्क्स है। सो हम ये कह सकते हैं ना कि जो 100% है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 150 मार्क्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और जो 50% है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 75 मार्क्स के इक्विवेलेंट है। सो ये चीजें हमें कुछ पता होनी चाहिए, बिकॉज वी विल यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन आर क्वेश्चंस। हम एक अपने क्वेश्चंस में इन चीजों का यूज करने वाले हैं। लेट अस मूव ऑन, और एक छोटा सा एग्जांपल हम और भी देखते हैं। देखिए, ये तो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। सपोज आई एम सेइंग, in a class there are total 200 students. Okay, so in a class there are how many students? Total students are, let us say total students are 200. Okay, and on a specific day we have how many students are present? Present students are, let us say it is 150 students. Okay, now question is asking about present percentage. Okay, so how can you calculate the present percentage? You have to put the number of the students who are present in numerator, and in denominator you have to put the total students, then multiplied by 100. जब हम मार्क्स की बात कर रहे थे तो हम न्यूमरेटर में क्या रख रहे थे, न्यूमरेटर में हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स को रखा और डिनोमिनेटर में हमने टोटल मार्क्स को रखा। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया। अब यहाँ प्रेजेंट का परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम न्यूमरेटर में प्रेजेंट जो नंबर होगा, जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे वो रखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम टोटल स्टूडेंट्स को रखेंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे यदि इसको निकाला जाए तो ये कितना होगा, 150 आपके प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई 200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। So ये 2020 will be cancelled out. So the percentage is equal to 75%. तो अब इस जगह बात करी जाए तो आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 हैं, और आपका जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो 150 हैं। यानी आपके प्रेजेंट स्टूडेंट्स नंबर में तो 150 हैं और परसेंटेज में कितने हैं, परसेंटेज में 75 है। और यदि आपके टोटल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो नंबर में 200 हैं,
टोटल स्टूडेंट्स नंबर में 200 है और परसेंटेज में कितने हैं, परसेंटेज में 100% है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 100% है वो इक्विवेलेंट है किसके, 200 के, ठीक है। और आपका जो प्रेजेंट है यानी आपके जो 75% है, 75% जो वैल्यू है ये किसकी इक्विवेलेंट है, ये है 150 की इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी सी बातें समझनी है। तो अब हम देखेंगे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अभी अभी मैंने आपको दो एग्जांपल समझाए थे, जिसमें पहले एग्जांपल में हमने ऑब्टेन्ड का परसेंटेज निकाला, तो उसमें हमारी डिजायर्ड वैल्यू क्या थी, हमारी डिजायर्ड वैल्यू थी ऑब्टेन्ड परसेंटेज निकालना। तो हमने न्यूमरेटर में रखा था ऑब्टेन्ड मार्क्स को और डिनोमिनेटर में रखा था हमने टोटल मार्क्स को, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने प्रेजेंट का परसेंटेज निकाला, तो हमने न्यूमरेटर में क्या रखा, प्रेजेंट को रखा, डिनोमिनेटर में हमने टोटल वैल्यू को रखा, टोटल स्टूडेंट्स को रखा, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज का फॉर्मूला यही कहता है कि न्यूमरेटर में आपको डिजायर्ड वैल्यू रखनी है, न्यूमरेटर में आप क्या रखेंगे, डिजायर्ड वैल्यू रखेंगे, डिजायर्ड वैल्यू विल बी इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में आप टोटल वैल्यू रखेंगे, टोटल वैल्यू, देन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स में डिजायर्ड वैल्यू क्या थी, ऑब्टेन्ड मार्क्स का जब हम परसेंटेज निकाल रहे थे तो उसमें डिजायर्ड वैल्यू थी ऑब्टेन्ड मार्क्स, और नीचे क्या था, टोटल वैल्यू, टोटल मार्क्स। और जब हम प्रेजेंट का परसेंटेज निकाल रहे थे तो डिजायर्ड वैल्यू क्या थी, प्रेजेंट का परसेंटेज निकालना, तो डिजायर्ड वैल्यू होगी प्रेजेंट। तो प्रेजेंट जो नंबर है, प्रेजेंट स्टूडेंट थे वो होंगे न्यूमरेटर में, टोटल स्टूडेंट्स होंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस विल बी योर प्रेजेंट सॉरी परसेंटेज फॉर्मूला। आपका ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये आपको आपको याद रखना है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन एवरीवन, मूव करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। सो आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना है कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता है और परसेंटेज डिक्रीज होता है वो ऑलवेज कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, वो ऑलवेज कैलकुलेट होता है इनिशियल वैल्यू के ऊपर। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ध्यान से देखिएगा। सपोज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल है उसका जो प्राइस है, उसका जो प्राइस है वो हम ले रहे हैं कि इनिशियल प्राइस। इस आर्टिकल का जो इनिशियल प्राइस है वो हम ले लेते हैं कितना, वो ले लेते हैं हम, चलो 200 रुपीज ले लेते हैं, ठीक है। अब जो इसका यानी आफ्टर फ्यू डेज द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल वो चेंज हो गया, इस आर्टिकल का जो प्राइस अब हो गया, यानी इसका जो न्यू प्राइस है, इसका जो न्यू प्राइस है वो मैं ले लेता हूं कितना, वो हम ले लेते हैं 120 रुपीज। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला प्राइस था वो 200 रुपए था, 200 रुपीज, एंड न्यू प्राइस जो है वो 120 रुपीज है। तो यहाँ पे प्राइस के अंदर डिक्रीमेंट हो गया। अब ये कितना डिक्रीमेंट हुआ, ये प्राइस है ना 80 रुपए का डिक्रीमेंट हो गया, यानी 80 रुपीज प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। यानी हमें प्राइस पता लग गया कितना डिक्रीज किया, 80 रुपीज। अब हम ये चाहते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है, यानी कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो मैंने आपको यही बताया कि जो भी आपका इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, वो ऑलवेज इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। और यदि आपका डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिक्रीमेंट परसेंटेज, और ये कैसे कैलकुलेट होता है, डिक्रीमेंट डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो आपका प्राइस 200 से 120 हो गया, यानी डिक्रीमेंट हुआ है। तो डिक्रीमेंट का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, डिक्रीमेंट है 80 रुपीज का, और प्राइस का जो इनिशियल वैल्यू था वो है 200 रुपीज का, और मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि जो प्राइस है हमारा वो कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, वो 40% डिक्रीज हो गया। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। क्लियर। बस आपको क्या याद रखना है, एक ही छोटा सा पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है कि ऑल द परसेंटेज ऑब्लिक सॉरी ऑल इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, बस ये बात ध्यान रखिए। लेट अस मूव ऑन एवरीवन। नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट द परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यानी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन करेंगे, और परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन, और फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 50%, ठीक है। अब इस 50% को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं फ्रैक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस 50% को यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस 50 को आप इस फॉर्म में लिख दीजिए। भाई 50% का मतलब होता क्या है, 50% का मतलब होता है कि 50 अपॉन 100,
यही मतलब होता है। अब 50/100 है, अब इसको यदि मैं सॉल्व करने जाऊं तो आप देख पा रहे होंगे जीरो से जीरो कैंसिल हुआ और ये इससे 2 टाइम्स कट हुआ, तो इसका जो फ्रैक्शन बन के आया वो आया 1/2, यानी जो 50% वैल्यू है वो 1/2 के इक्विवेलेंट है। अब ये तो हमने देखा कि हम परसेंटेज का फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन करते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे किया जाए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/4, अब मैं इसका कन्वर्जन करना चाहता हूं परसेंटेज के अंदर, तो यदि मुझे परसेंटेज लेकर के आना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं यदि 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये निकल के आएगा कितना, 25%। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू, ये दोनों हमें याद होने चाहिए, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वी इन दिस लेस टाइम वी हैव टू सॉल्व द सेवरल क्वेश्चंस। कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि इन परसेंटेज वैल्यूज को, इन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज को हम पहले से लर्न करके अपने माइंड के अंदर रख लेते हैं, ताकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम के अंदर, जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमें सॉल्व करने की नीड ना पड़े। हमारे माइंड को पहले से पता होना चाहिए कि मैं जैसे लिख रहा हूं, या एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि 16 होल 2/3% है। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे पहले तो सॉल्व करने में टाइम जाएगा, लेकिन जो बच्चा इसको याद करके जा रहा है वो इसको क्विकली लिखेगा 1/6। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की वैल्यूज याद करनी है। आइए जरा उन्हीं को दिखते हैं। तो गाइस सबसे पहला परसेंटेज है आपका, सबसे पहला जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/2 है। तो 1/2 जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, 50% के। 1/2 इज इक्विवेलेंट किसके, 50% के। ठीक है, और इसका रिवर्स भी आपको याद करना है, 50% इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 50%। नेक्स्ट इज 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 33 होल 1/3%, और इसको पॉइंट में भी याद करेंगे 33.33%। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 25%। ठीक है, और 25% इज इक्वल टू 1/4। 1/5 इज इक्वल टू 20% एंड 20% इज इक्वल टू 1/5। ये वैल्यूज आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए गाइस, इनको, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लेना, और जब भी आप मोबाइल ऑन करते हैं उससे पहले इन सारी वैल्यूज को 2 मिनट के लिए आप रिवाइज करेंगे, और उसके बाद आप मोबाइल का फर्दर यूज करेंगे। और दूसरा एक वे आपको और बताता हूं इनको लर्न करने का, कि इसका आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकालें, प्रिंट आउट लेके अपने सामने वाली वॉल पे लगा दे जहां भी आप सोते हैं। और जब भी आप एक बार बेड पे बैठ रहे हैं या आप अपने टेबल पे बैठ रहे हैं तो उन वैल्यूज को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज 1/6, 1/6 इज इक्वल टू 16 होल 2/3%, और इसका पॉइंट वैल्यू भी याद करना है 16.66%, और रिवर्स भी याद करना है, रिवर्स भी याद करना है, ध्यान रखिएगा। 1/7 is equal to 14 whole 2/7% and 14.28%. 1/8 is equal to 12 whole 1/2% and 12.5%. 1/9 is equal to 11 whole 1/9% or 11.11%. 1/10 is equal to 10%. 1/11 is equal to 9 whole 1/11% and 9.09%. 1/12 is equal to 8 whole 1/3%, or you can say 8.33%. Clear है guys? 1/13 is 7 whole 9/13%, or you can say 7.69%. 1/40 is equal to 7 whole 1/7%, or you can say 7.14%. 1/50 is equal to 6 whole 2/3%, or you can say 6.66%. 1/16 is equal to 6 whole 1/4%, or 6.25%. 1/17 is equal to 5 whole 15/17% and 5.88%. और इस तरीके से ये वाली वैल्यूज भी गाइज आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज पर जब इसको आप लर्न करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस लगेगा। हाँ गाइस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, इसमें लगता है ये टाइम, और इसको हमें बार बार डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे तभी ये हमारे माइंड के अंदर फिक्स हो पाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ और बेसिक फंडामेंटल थिंग्स देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है उनका फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 1/12, ओके, जैसे मैंने लिखा 1/12, वेट एक सेकंड रुकिए। तो 1/12 का देखो हमने परसेंटेज यहाँ पे देख रखा है कि 8 होल 1/3% होता है। अब मैं यहाँ पे आपको 1/8 के ऊपर लेके चलता हूँ और 1/8 की फैमिली सिखाता हूँ। तो गाइस देखिएगा 1/8 की फैमिली क्या है। देखिए 1/8 फैमिली को समझेंगे अब। देखिए
गाइस 1/8 है ना, 1/8 इज इक्वल टू 12 होल 1/2%, ये 1/8 होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हमें 3/8 भी पता होना चाहिए। 3/8 कितना होगा, 3/8 होगा 37 होल 1/2% और 37.5%। ऐसे हमें 5/8 भी पता होना चाहिए गाइस। 5/8 कितना होता है, 5/8 होता है 62 होल 1/2%, ठीक है। और एक होता है 7/8। तो 7/8 कितना होता है, 7/8 होता है गाइस 87 होल 1/2%। तो ये 1/8 फैमिली है, ठीक है। ये आपको याद करना है, 1/8 फैमिली अलग से याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पिछली स्लाइड पे लेके चलता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं गाइस कि जैसे हमारे पास 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 को हम क्या बोल रहे हैं, 1/3 इज इक्वल टू 33, सॉरी, वेट, 33 होल 1/3%, और इट इज व्हाट, इट इज 33.33%। तो ये है हमारा क्या, 1/3। अब यदि मैं इस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी इस 1/3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 2 से, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सिमिलरली हमें इसको भी 33 होल 1/3% को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3, और इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 66 होल 2/3%, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम 66.66%, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, और 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है 66.66%। तो 1/3 भी हमें पता होना चाहिए, और 2/3 भी हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट में एक परसेंटेज आपके सामने लिख रहा हूं गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 18.75%, 18.75%, ठीक है। और बेटर वे में आपको बताता हूं, इसको आप इस तरीके से ना करके आप इसको ऐसे समझना। पिछली स्लाइड पे एक बार मैं आपको वापस लेके चलूंगा। पिछली स्लाइड में देखना गाइस, हमारे पास 1/6 है, 1/6 कहां पे, ये रहा, ठीक है। और एक हमारे पास 1/16 है, 1/16 कहां पे, यहां पे देखो, ये रहा। तो आप 1/16 को पहले देखना गाइस कि 1/16 है हमारे पास। तो यदि मैं 1/16 को लिखता हूं, तो 1/16 जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, ये इक्विवेलेंट है 6.25% की। अब यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सिमिलरली मुझे ये भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन गया 3/16। सो 3/16 आपके किसकी इक्विवेलेंट होगा, ये होगा 18.75% के इक्विवेलेंट। तो ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई, बट इसका हमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं पता होता। तो अब आपको इसका फ्रैक्शन पार्ट याद रखना है गाइज कि 18.75% इक्वल होता है किसके, 3/16 के। तो 3/16 इज इक्वल टू 18.75%। एक और छोटा सा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है गाइज। एक होता है हमारे पास 83.33%। सो इस 83.33% को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 50% प्लस 33.33%, 33.33%, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो 50% प्लस 33.33%, तो 50% का तो मतलब हमें पता है कि 1/2 होता है, और 33.33% का भी मतलब हम जानते हैं कितना होता है, 1/3 होता है। अब यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ भी हम इनके बीच में प्लस लगा देते हैं, और यदि इनके बीच में मैं प्लस प्लस लगाता हूं, तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है मेरे पास 5/6, ठीक है। तो 83.33% इक्वल टू व्हाट, 5/6, ये 5/6 की इक्विवेलेंट है। सो ये वैल्यूज गाइज आपको याद करनी है, ये वैल्यूज आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है, बिकॉज दीज आर दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ठीक है। और ये क्यों करना है, बिकॉज हमें परसेंटेज को इजी बनाना है हमारे लिए, इसलिए, ठीक है। लेट अस मूव ऑन। अब हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड सक्सेसिव डिक्रीमेंट को समझेंगे, उससे पहले अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और समझना गाइस, कि ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ।
ये ऑलवेज करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि x परसेंटेज ऑफ y जो है वो y परसेंटेज ऑफ x के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि 10% ऑफ 600, ठीक है। अब इसी को मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% ऑफ 600 इज इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू 600% ऑफ 10, ठीक है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये वैल्यूज इक्वल आती हैं क्या। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये इसको क्या लिखेंगे, 10% का मतलब 10/100 इंटू 600। सो आप बोलोगे कि ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 60। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या बनता है, 600% का मतलब क्या होगा, 600 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। तो देखिए 2020 कैंसिल हुआ, ठीक है। 20 ऐसे ऐसे मत करो आप इसको, ठीक है। आप इसको एक काम कीजिए, 100 और 100 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये 100 नहीं है 10 आएगा ना गाइस, ये 10 आएगा। ये यहाँ पे 100 नहीं है, ये यहाँ पे 10 है। तो 2020 कैंसिल हुआ, तो 6 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 60 जो है वो 60 की इक्विवेलेंट हो गया। इसलिए मैंने आपके सामने ये बात बोला कि x परसेंटेज ऑफ y जो होता है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है y परसेंटेज ऑफ x की, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे, इस ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका भी हम यूज करेंगे जब हम कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज की, तब इसका यूज होता है। तो आइए जरा अभी हम प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, लेकिन बाद में समझेंगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज 30% ऑफ 80, यानी 80 का 30% कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं, मैं पहले इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि 30% का मतलब हो गया 3/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 80। अब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 3 इंटू 8 करेंगे तो ये हो गया 24, और 24 का मतलब मेरा जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन ए हुआ। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए गाइस हमें अपने पेन को भी उठाने की नीड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप देखिए कि ये 30% है, तो 30% का मतलब ये हुआ कि 30/100 और मल्टीप्लाइड बाई 80। तो जब 100 नीचे है और 100 में 2 जीरो लगी हुई हैं, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या क्या है, 30 और 80 है, तो 30 में भी एक जीरो है, 80 में भी एक जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये कितना आ जाता, 24 आ जाता, 24, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब ऐसे ही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताना, ये 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब होता है कि 10% प्लस 10% प्लस 10%, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 30%। इसका मतलब ये हुआ। अब हमें, यदि हमें 80 का 10% यदि पता है, तो हम क्या करेंगे, उस 80 का 10% निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है ना। आप देखो 80 का 10% कितना आएगा, 80 का 10% निकालना है, यदि मुझे 80 का यदि मुझे 10% निकालना है, तो आप ये कहेंगे कि 0 0 यानी 8 आएगा, ठीक है। तो ये ओनली 80 का 10% निकाला, और 80 का फिर दोबारा 10% निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 80 का दोबारा 10% निकालेंगे, वो भी कितना आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 24 होगा। अब देखो किसी भी वैल्यू का यदि हमें 10% निकालना है, जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारे पास है 600, इस 600 का मुझे 10% निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस 600 में से लास्ट वाली जीरो को रिमूव कर दो, तो ये 10% आ गया 60। अब मैं कहता हूं कि हमें 7000 का 10% निकालना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाली जीरो को हटा दोगे, तो इसका आ गया 700, ठीक है। हमें, मैं ये कहता हूं कि 250 का हमें निकालना है 10%। तो 10% जब भी निकालने की बात करें तो लास्ट वाली जीरो को हटा दो, तो ये आ गया 25, ठीक है ना। तो किसी भी वैल्यू का यदि मुझे 10% निकालना है, तो वो क्या होगा, लास्ट वाली उस वैल्यू में से लास्ट वाली जीरो को हटा दो, तो वो आपकी बन गई 10% वैल्यू। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें 80 का निकालना था 30%, ठीक है, 80 का 30% निकालना था, तो वो कितना आया, लास्ट वाली जीरो को हटा देंगे 80 में से, तो ये आ गया 8, ठीक है। अब हमें पता है कि 30% क्या होता है, 10% का 3 गुना होता है, यानी 3 टाइम्स ऑफ 10%। तो इस 8 का, ये 8 है 10% 80 का, तो इसका 3 टाइम्स कर दो, तो इसका 3 टाइम्स हम करेंगे तो ये आगे कितना, 24, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको देखो इसी क्वेश्चन के 2-3 मेथड बता दिए। अब आपको कौन सा मेथड चूज करना है, आपको वो मेथड चूज करना है जिसमें पेन का यूज मिनिमम हो, है ना। तो हमें मिनिमम यूज करना है पेन का।
हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक क्वेश्चन है मेरे सामने। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स। अब गाइस मुझे एक बात बताना कि हमारे पास जो टोटल वैल्यू होती है वो ऑलवेज कितनी होती है? 100% होती है। ये मैंने आपको इनिशियल अभी बताया था। 100% में से इसने बोला जी 40% आर गर्ल्स, यानी गर्ल्स हमारे पास यदि 40% है गाइस, तो यू कैन से हाउ मेनी परसेंटेज बॉयज आर देयर? सो यू विल से बॉयज परसेंटेज विल बी 60%। भाई 100% वैल्यू होती है, उसमें से जो गर्ल्स है वो 40% है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 60% बचा वो क्या है? वो बॉयज का होगा। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास। अब हमें टोटल जो 50 स्टूडेंट्स हैं उसमें 60% बॉयज हैं, अब हमें बॉयज का नंबर बताना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको पहले बेसिक तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 50 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं और इसका निकालना है हमें 60%। इसका निकालना है गाइस 60%, तो 60/100। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 1/2 हो गया और ये 1/2 होते के साथ ये क्या बन गया? 30 बन गया। सो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 30। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपको मैं बताना चाहता हूं दूसरे तरीके से। देखो गाइज, हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 50 हैं। और टोटल स्टूडेंट्स परसेंटेज में कितना है? हम जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स परसेंटेज में है 100%। सो वी कैन से 100% वैल्यू इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स, 100% वैल्यू इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। सो अब यहां से यदि हम इसका 1% निकालें या फिर हमें इसका कितना निकालना है? 60% निकालना है। तो 60% वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? तो आप क्या करेंगे? इस 50 को लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा ये 100, और निकालना क्या है? 60% वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 60। ये 1/2 हो गया और ये 1/2 के साथ होते के साथ ही ये क्या बन गया? ये 30 बन गया। सो 30 विल बी योर राइट आंसर। नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 30। ऑप्शन बी इज राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये चीजें आपको क्लियर होंगी। हमें स्मार्ट अप्रोच सीखने, हमें एप्टीट्यूड सीखना है। ठीक है, लेट अस मूव ऑन, कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक कोई फ्रूट सेलर है गाइस, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं। ही सेल्स 40% ऑफ द एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। देखो, इस फ्रूट सेलर के पास इनिशियली कितने एप्पल्स रहे होंगे? इनिशियली इसके पास 100% एप्पल्स रहे होंगे। अब इसने कितने एप्पल्स सोल्ड कर दिए? इसने सोल्ड कर दिए हैं 40%। अब मुझे बताओ, यदि 40% सोल्ड हो चुका है तो हमारे पास रिमेनिंग रिमेनिंग फ्रूट्स कितने बचे होंगे? रिमेनिंग फ्रूट्स रहे होंगे हमारे पास 60%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, यानी उसने 40% सेल कर दिए, उसके बाद उसके पास 420 एप्पल्स बचे हुए हैं। और हमारे अकॉर्डिंग, हमारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसके पास कितने परसेंटेज एप्पल्स बचे हुए हैं? उसके पास 60% एप्पल बचे हुए हैं। और ये जो 60% एप्पल हैं, ये किसके बराबर होगा? ये 420 एप्पल्स के बराबर होगा। सो हम ये कह सकते हैं, कि 60% जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है किसके? 420 एप्पल्स की। ठीक है, तो हम यहाँ जीरो से जीरो को कैंसिल करते हैं, तो ये 1% वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? आप देख पा रहे होंगे ये 1% वैल्यू 6 7 42 होता है, तो ये 1% वैल्यू 7 एप्पल के बराबर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनली ही हैड, यानी उसके पास कितने एप्पल शुरू में थे? तो शुरू में उसके पास हमने पहले अज्यूम कर रखा है कि शुरू में उसके पास 100% एप्पल थे। तो 1% इज इक्वल टू 7 एप्पल। सो 100% वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मेनी एप्पल्स? 700 एप्पल्स। सो 700 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। तो और मैंने प्रीवियस यदि तरीके से देखें तो 60% वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 420 के इक्विवेलेंट है। 420 एप्पल्स के इक्विवेलेंट है, तो 100% वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी? ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। सो 420/60 इंटू 100। तो ये जीरो जीरो कैंसिल हुआ, ये कितनी बार जाएगा? 7 टाइम जाएगा। 7 इंटू 100 इज व्हाट? 700। 700 विल बी योर राइट आंसर। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो गाइज अभी हमने इस क्वेश्चन को भी देखा, प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखा, तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस हमें अपनी अप्रोच को डेवलप करना है। Now in this question you can see Victor gets 92% of marks in the examinations. ये 92% उसका obtained percentage है। If these are 460 marks, यानी ये जो 92% हैं ये 460 marks हैं, तो इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। तो मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये आपसे टोटल मार्क्स पूछ रहा है ना। तो 92% वैल्यू जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है? ये इक्विवेलेंट आती है 460 मार्क्स के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अब हमें 100% वैल्यू बतानी है। 100% इसका मतलब टोटल मार्क्स पूछ रहा है, इट मीन्स वो 100% पूछ रहा है। सो 100% का वैल्यू क्या होगा, कितने मार्क्स इक्विवेलेंट होगा, तो 460 डिवाइडेड बाई 92 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यदि हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो 4 से इसको कट किया तो ये 4 से जाएगा 25 टाइम्स, और 4 से इसको कट किया तो कितनी बार जाएगा, 23 टाइम्स। और 23 से इसको कट करेंगे तो ये 23 टू जा 46 होता है, और ये जीरो आ जाएगा, तो 25 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, 500। सो द टोटल मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम इज 500। ऑप्शन सी विल बी राइट। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, है ना। यदि गाइज आपको ये पढ़ाने का तरीका, आपको है ना एक्सप्लेनेशन का तरीका, ये चीजें सब समझ में आ रही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर कर देना। और गाइज इफ यू वांट टू गेट पेड कोर्सेज, आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो नीचे आपको है ना, इसी वीडियो के नीचे आपको है ना हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। ओके, अब हम जो आगे के क्वेश्चंस है वो आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे गाइस। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। और बिफोर दैट, आगे के लिए आप एक काम करना, आगे की क्लास में आने से पहले आप ये सारे जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, इन सभी वैल्यूज को आप लर्न करके आना। ओके, सो इन दिस क्लास हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।